Morning to all of you. Today I will tell you the live demonstration of working in Python. So suppose that you have computer and you have already installed the Python. Then here when you click on this Python, then you will see ideally means script mode, and that is your command prompt. So yesterday I told you about the command prompt. So click here the command prompt. Now this is your command prompt. Here you can use it like a calculator in this manner. Whatever you want to do, you can do in this manner. Suppose that you want to write this in this manner, you can write this. Suppose that you have written 2 plus 7 plus 6 multiplied by 4, then you will get the result. Suppose that you have divided 56 by 8, then you will get the result in this manner. Suppose that you have divided 58 by 7, then you will get a fractional part, fractional result में डेसिमल में रिजल्ट आपका आएगा. नाउ कल आपको एक नई चीज़ बताई थी 58 /7. इफ़ यू डू दिस देन यू विल गेट ओनली द इंटीजर पार्ट ऑफ द रिजल्ट. सो ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशंस दैट यू वांट टू डू यू कैन डायरेक्टली डन इन कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ पाइथन जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर. ओके, you can also write the expressions in this manner. Suppose that you have taken a equal to 8, now b equal to 5, and you have written a minus b, then you will get the result, because now you have assigned a variable a with value 8, then another variable b with value 5, and you have written a minus b. So whatever you have assigned in a and b, that will subtract and you will get the result in this manner. You can also put the result in some other variable. Suppose that you want to put the result of a into b in a variable c, it will calculate it. Now you want to see, you want to print the result, then you can press here. We are working in command prompt. You can directly, क्योंकि एक एक लाइन में जो भी आप लिखेंगे तुरंत आपका रन कर जा रहा है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आप रन कर सकते हैं. जैसे किसी एक वेरिएबल आपका है लेंथ इक्वल टू आपने ले लिया 8.9, एक आपका है ब्रेड्थ इक्वल टू आपने ले लिया 4.5. अब यहाँ पे आप ऐसे निकालते हैं एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई, इंटर किया, एरिया में रिजल्ट कैलकुलेट होके आ गया. इफ़ यू वांट टू प्रिंट इट देन यू टाइप जस्ट हियर एरिया. इन दिस मैनर यू कैन आल्सो वर्क. ओके, so all these means that I told you, and one thing is their remainder. Suppose that you want to divide 45 by 6, then it will go in this manner 7.5. But if you have divided 45 remainder 6, then you will get the remainder, means what will left after dividing it by 6. In this manner you can do the all things. One more thing yesterday discussed, 2 times asterisk sign 4, that is the 2 to the power 4, and the value will be 16. Suppose that you want to find the 5 to the power 3, then in this manner you can write in this manner, then you will get this. So that's all about this mode, command prompt mode or intermediate mode. And now move to the script mode. Script mode is also known as interactive mode. In interactive mode, for working in the interactive mode, we will start Python interactive mode. So I will show you how you start. Interactive mode will appear in this manner. Here you can write the program of multiple line program in terms of a file. You write the program in multiple line and save it in a file, and when you run that file, then all the lines in that program will run one after another, because as I told you, Python works in Python is an interpreter based, so means line by line program आपका run करेगा. Okay, again we move to the same menu. We click here Python, then that is your IDLE script mode. Now click here, then script mode will open, and script mode will appear in this manner. You can see here that is the script mode. Okay, and in script mode you have to click on file, then new. A new untitled window will open. Here you will write a program in this manner. Suppose I have written a equal to 8, then b equal to 67, then c equal to a plus b, and you have written print c in this manner, and another variable d equal to a multiplied by 5, then you can print here
D also. You can also print about your name, then print in double quotes, my name is Anurag. Okay, in double quotes you have to write this. So you have written a multiple line program here. If you want to run it, then you have to click here run, or you can directly press the F5 key. So run module, before running the program, it will ask to save your program. So now save your program, give a name for your program. Suppose that we have given F1. F1 is the name of your program, and it will automatically attach the .py. Now here is the result. फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट एंड माय नेम इज अनुराग. देखिए यहाँ पर आपने दिया था पहले प्रिंट सी कराया, तो सी को देखिए इसने प्रिंट किया, फिर आपने डी को कैलकुलेट करके डी को प्रिंट कराया, फिर आपने यहाँ एक मैसेज प्रिंट कराया, प्रिंट माय नेम इज अनुराग. ये क्या है, यहाँ पर आपने मल्टीपल लाइंस का एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया, और ये क्या है, इकट्ठा उस प्रोग्राम का आउटपुट आ गया. तो दैट इज़ द स्क्रिप्ट मोड वेयर यू कैन राइट multiple instructions of the program and all the instructions get executed one by one and you will get us combined result. एक साथ रिजल्ट आपको यहाँ मिल रहा है. बाकी कमांड प्रॉम्प्ट में क्या था, एक बार में एक ही लाइन का रिजल्ट आपको मिलता था. क्लियर है. एज ए समरी यू कैन click here, open the Python in script mode, then click on file, open a new file. When you click file open use for an existing file जो पहले से बनाई उसको खोलने के लिए, या फिर फाइल पे जाके न्यू विंडो करेंगे तो नई विंडो आ जाएगी जैसा अभी आपको दिखाया था. प्रोग्राम लिखिए जो लिखना है, सेव करिए, कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं. आफ्टर दैट F5 करके आप इसको रन करा सकते हैं. F5 प्रेस करने के बाद जो आप रन कराएंगे, रन कराने के बाद जो आपको रिजल्ट है उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा. अब जैसे ये एक छोटा सा प्रोग्राम आपका है, यहाँ पर देखिए फंक्शन डिफाइन करके प्रोग्राम बनाया गया है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. यहाँ पे अभी आप इसको सीधे देखिए, x = 2, y = 6, z = x + y, प्रिंट z. तो ये क्या होगा, इतना आप लिखेंगे और ये प्रोग्राम आपका सीधे का सीधे रन कर जाएगा. क्लियर है. बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम वी हैव टू नो अबाउट द वेरिएबल्स दैट वी आर यूजिंग इन द प्रोग्रामिंग. सो वेरिएबल्स एंड टाइप. Variables, as I told you, variable are the names that are used to store the data in memory, and by use the reference of variable you can get the data from the memory and you can also store the data in memory. Now what is a variable and identity? Variable क्या है, every object has some identity. कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो एक उसकी आइडेंटिटी होती है, फिर उसका टाइप होता है, फिर उसकी वैल्यू होती है. तो ये सारी की सारी चीज़ें हम वेरिएबल के थ्रू ही यूज करते हैं. तब देखिए आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, it is the object address in memory and does not change once it has been created. इसे a = 10 आपने दे दिया, a = 10 आपका मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि आप इसको खुद ना बदलें. तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, किसी भी नाम का कोई वेरिएबल हो सकता है. ठीक है. एंड वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का अगली चीज़ होती है टाइप. टाइप का मतलब क्या होता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज़ होल्डिंग. किस तरह का डेटा ये वेरिएबल होल्ड कर रहा है, इंटीजर है, डेसिमल है, फ्लोट है, क्या है. वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स. हमारे पास डेटा टाइप होते हैं. तो क्या क्या डेटा टाइप होते हैं, नंबर्स होता है, एक नन डेटा टाइप होता है, एक आपका सीक्वेंस होता है, सेट्स होते हैं और मैपिंग होती है. तो अभी नंबर्स पे आप आइए, अभी मैं नंबर्स को देखना है, बाकी को अभी आप बाद में देखते हैं. नंबर्स में देखिए क्या क्या होता है, इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट होता है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होता है. ये 3 नंबर आपके होते हैं. इंटीजर आपने देखा ही, द नंबर विच हैज नो डेसिमल पार्ट, इंटीजर है आपका. अब इंटीजर में क्या होता है, जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता है वो आपका इंटीजर होता है. फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब विद हैव द डेसिमल पार्ट. कॉम्प्लेक्स का मतलब जो 10⁻⁴ में वैल्यूज जाती हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कहते हैं. इनके बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे कैसे क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स. इंटीजर आर द होल नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ +- साइन विद डेसिमल डिजिट्स लाइक दिस. While writing a large integer value, don't use comma separated digit. अब ये देखिए इंटीजर क्या है, विदाउट द डेसिमल. विदाउट द डेसिमल ये सब आपके क्या इंटीजर हैं. जिनमें डेसिमल नहीं है वो सब के सब आपके इंटीजर हैं. a = 10 इंटीजर, b = L रिप्रेजेंट्स द लॉन्ग इंटीजर. लॉन्ग इंटीजर मीन्स हैविंग अ मच मोर वैल्यू. ओके.
Example of supplying a very long value to a variable that is intimated by the capital L at the last. Okay, and here is a method type. Type is used to find the nature of the variable that you are using. जब आप टाइप ब्रैकेट में करके पूछेंगे उस वेरिएबल का नेचर तो बताएगा कि उसका नेचर क्या है. अब जैसे यहाँ पे आपने लिखा C, अब C में ये वैल्यू लिखी हुई है इंटीजर वैल्यू है, आपने लिखा टाइप ऑफ C तो बता रहा है टाइप ऑफ C क्या इंटीजर है. अब यहाँ पे देखिए C इक्वल टू C इंटू दिस. अब टाइप ऑफ C करेंगे तो क्या हुआ, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो दैट इज़ टाइप इसकी क्या हो गई, लॉन्ग इंटीजर हो गई. क्लियर है. टाइप आपका था बूलियन. तो बूलियन टाइप जो होता है, बूलियन टाइप इज यूज टू स्टोर द वैल्यू इन ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स के मैनर में स्टोर करना होता है तो बूलियन का यूज करते हैं. तो यहाँ पर इंटीजर में आपको मैंने बताया इंटीजर होता है और लॉन्ग इंटीजर होता है. दूसरा इसी में कैटेगरी थी आपकी बूलियन. तो बूलियन क्या होता है, इंटीजर कंटेन बूलियन टाइप विच इज अ यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ टू कंस्टेंट ट्रू और फॉल्स. अ बूलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो, नॉन नल एंड नॉन एम्प्टी. अब जैसे ये है, एक वेरिएबल ले लिया फ्लैग, फ्लैग इक्वल टू मैंने स्टोर क्या करा दिया, इसमें ट्रू स्टोर करा दिया. अब टाइप ऑफ फ्लैग हम करके देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, बूल, क्योंकि बूलियन डेटा टाइप जो होता है या तो ट्रू वैल्यू स्टोर करता है या फिर फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है. आफ्टर दैट सेकंड जो डेसिमल वाली हम बात कर रहे थे, डेसिमल में आपका फ्लोटिंग पॉइंट था और कॉम्प्लेक्स नंबर थे. तो यहाँ पर देखिए फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट. जिसमें फ्रैक्शन या फिर डेसिमल पॉइंट होता है वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट कहलाता है. अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विल कंसिस्ट ऑफ प्लस माइनस साइन, सारे नंबर में प्लस माइनस साइन हो सकते हैं. अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, 0.0 माइनस 21.9 माइनस 0.98 एंड दिस मच. दिस नंबर कैन आल्सो बी यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक साइंटिफिक नोटेशन. अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे ये आपका नंबर है माइनस 2.0 इंटू 10 टू दी पावर 5. तो ये तो हम लोग जानते हैं, किसी भी नंबर को 2.0 या प्लस हो या माइनस हो 10 टू दी पावर 5 हम लिख रहे हैं. इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ये भी है, माइनस 2.0 और 10 टू दी पावर 5 को कंप्यूटर इस तरह से दिखाता है E5. अब 10 टू दी पावर 5 की जो वैल्यू है वो क्या है, प्लस में 5 है, इसीलिए E5 लिखा हुआ है. अब नीचे देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल है 2.0 इंटू 10 पावर माइनस 5. तो इसको कंप्यूटर रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, 2.0 कैपिटल E माइनस 5. ओके, तो जस्ट रिमेंबर दिस, व्हेन पॉजिटिव वैल्यू देन यू कैन राइट E5 एंड व्हेन नेगेटिव वैल्यू देन यू कैन राइट E माइनस 5. आफ्टर द E जो कुछ लिखा हुआ है वो आपका क्या है, 10 टू दी पावर में लिखा जाता है. अब जैसे y इक्वल टू 12.36 है. अ वैल्यू है स्टोर्ड एज फ्लोटिंग पॉइंट इन पाइथन विल हैव 53 बिट्स ऑफ प्रिसीजन. 53 बिट्स ऑफ प्रिसीजन का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद इतनी दूर तक डेसिमल डिजिट लेकर के वो उसको स्टोर कर सकता है. अब तीसरी कैटेगरी इसी में जो थी फ्लोटिंग पॉइंट के बाद वो आपकी है कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो कि दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज से मिलके बने होते हैं, जिसमें कि एक रियल होता है दूसरा आपका इमेजिनरी होता है. जैसे कि ax² प्लस bx+c आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, उसमें दो वैल्यू निकल के आते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी. तो ऐसे ये है x इक्वल टू 1 प्लस 0j. तो यहाँ पर क्या है, x का रियल और इमेजिनरी हम दोनों प्रिंट करा रहे हैं, x डॉट रियल x डॉट इमेजिनरी. तो x डॉट रियल में क्या मिल रहा है 1.0 और इमेजिनरी में क्या मिल रहा है 0.0. जैसे ये वैल्यू है y इक्वल टू 9.9 माइनस 5j. तो 9 माइनस 5j, j आपका इमेजिनरी वैल्यू के लिए यहाँ यूज़ किया जाता है. तो इसकी एक रियल वैल्यू हो गई, एक इमेजिनरी वैल्यू हो गई. तो रियल वैल्यू क्या है 9.0 है, इमेजिनरी वैल्यू क्या है माइनस 5.0 है. अब यहाँ पे इस डिफिनीशन को ध्यान से देखें. कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन इज मेड अप ऑफ 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, वन ईच फॉर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट. Suppose that x, we will use x dot real and x dot image. Imaginary part of the number is represented by j. Okay, so that is only for your theory portion, because when we are using linear equations then we have to use the imaginary and real both part. Otherwise we are using the decimal portion, and that is इफ़ द डेसिमल वैल्यू इज़ वेरी लार्ज इन 10 टू दी पावर, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसको इस तरह से कंप्यूटर आपको शो करेगा. तो देख करके आप जान जाइए कि इसका मतलब क्या है.
इसका मतलब ये है कि -2.0 E5 का मतलब क्या है, -2.0 इंटू 10⁵ और इसका मतलब क्या है 2.0 इंटू 10⁻⁻5 एक्सपोनेंट फॉर्म यहाँ से हो जाती है। और बाकी जो नॉर्मल डेसिमल आता है जैसे 21.9 है और छोटी वैल्यू कोई है तो उसको हम सीधे यूज कर सकते हैं। हम तो यूज करते ही हैं एक्चुअली। बहुत बड़ी वैल्यू अगर आती है तो कंप्यूटर उसको इस तरह से दिखाता है। 10⁻⁴ में अगर कोई वैल्यू आती है तो उसको कंप्यूटर इस तरह से ब्रेक कर देता है, e⁵ या e⁻- जो भी आपकी जैसे आती है। क्लियर है। एक डेटा टाइप आपका था नन। नन का मतलब क्या है, इट इज़ ए स्पेशल डेटा टाइप विद सिंगल वैल्यू। इट इज़ यूज टू सिग्निफाई द absence ऑफ वैल्यू। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नन। अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर हमारी कोई वैल्यू नहीं स्टोर है तो उसको हम नन मानते हैं। नन का मतलब क्या है कि इट इंडिकेट द absence ऑफ वैल्यू। क्लियर है। नाउ अगेन वी आर ओपनिंग द originally in script mode and do some calculations. Now it is clear that we again open the script mode and we have written a program a is equal to this value and b is equal to this value and we are multiplying। ये आपकी कैसी वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। F5 करके रन कराया, सेव करने को बोलेगा। रन कराने के बाद जो रिजल्ट आपका आ रहा है देखिए ये आ रहा है, क्या है 1173 ये इन दिस मैनर। सपोज दैट बहुत बड़ी वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तब क्या होता है। मान लीजिए आपने बहुत बड़ी वैल्यू लिख दी, ऐसे ऐसे करके कोई वैल्यू आपने लिख दिया और यहाँ पर आपने दे दिया इस तरीके से। अब क्या होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो काफ़ी बड़ा रिजल्ट आ सकता है। तो काफ़ी बड़ा रिजल्ट अगर आएगा तो उसकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद अगर कोई रिजल्ट आता है तो उसको वो क्या करता है 10⁻⁴ में ही शो करेगा। तो 10⁻⁴ में शो करने के लिए बताया था आपको, इस तरह से कर दिया। अब इसको रन कराइए। इसको रन कराने के बाद यहाँ पे देखिए इनवैलिड सिंटेक्स क्या आ रहा है, अच्छा यू दब गया है, हटा देते हैं उसको। F5 यहाँ पे रन कराया। अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आपका आ रहा है ये देखिए, इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कराने पर रिजल्ट आ रहा है इस तरह से +25। मतलब क्या है, स्मॉल या कैपिटल इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब +25 का मतलब क्या है कि वैल्यू क्या है 10⁻20 इतनी वैल्यू है, उसके बाद 10⁻25 है। अब देखिए एक में मैंने माइनस लगा दिया, माइनस लगा करके फिर हम रन करा रहे हैं तो रिजल्ट आपका देखिए इस तरह से और आगे माइनस साइन आ गया। क्लियर है। देखिए यहाँ पर रिजल्ट और आउटपुट दोनों को एक के नीचे एक कर दिया। ये देखिए जैसे ऊपर प्रोग्राम लिखा हुआ है, A= ये वैल्यू ली, B= ये लिया, C= A × B कर दिया, D में मैंने ट्रू स्टोर करा दिया। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिंट टाइप ऑफ A, प्रिंट टाइप ऑफ B, प्रिंट टाइप ऑफ C, प्रिंट टाइप ऑफ D। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, पहले वाले का टाइप A का क्या दिखा रहा है INT इंटीजर टाइप है, दूसरे वाले का टाइप फ्लोट है, तीसरे वाले का A और B मल्टीप्लाई कर दिया वो भी क्या है फ्लोट है, और D का टाइप क्या दिखा रहा है बूल दिखा रहा है। क्लियर है। तो टाइप ऑफ वेरिएबल इंडिकेट्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड बाय दैट वेरिएबल। अब उस वेरिएबल में जैसा वैल्यू स्टोर होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका टाइप आ जाएगा। तो टुडे आई टोल्ड यू डिफरेंट डेटा टाइप्स, बट अमंग फ्रॉम दोज डेटा टाइप आई टोल्ड यू अबाउट द इंटीजर। देन इंटीजर के अंदर लॉन्ग इंटीजर, उसके बाद बूल, इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट तक आपको बताया, एक और बताया नन बताया। इसके बाद इतने में कोई भी डाउट होगा तो शाम को जो 4 बजे क्लास होगी, यू कैन क्लियर योर डाउट इन दैट क्लास। ओके।